صوبائی دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، جیل روڈ، مال روڈ، جوہر ٹاؤن کے اطراف میں بوندا باندی، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے شہر کا موسم خوشگوار۔ آج لاہور میں بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شہر کا کم سے کم ٹمپریچر 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ سامعہ سعید سے مزید جانتے ہیں، بتائیے سامعہ۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم کی تو صبح سویرے بوندا باندی کے باعث شہر لاہور کا موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ تاحال بھی شہر کے افق پر بادلوں کے ڈیرے برقرار ہیں اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج دن بھر شہر لاہور میں وقفے سے بوندا باندی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ سردی کی شدت میں بھی آج اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اگر بات کی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے تو آئندہ 24 گھنٹوں میں شہر لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ البتہ شہر لاہور کا موجودہ درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور باہر ہوائیں چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق تاحال ہوا کی رفتار 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے جبکہ ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 66% تک جا پہنچا ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں آج وقفے سے بارش برسنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دھوپ اور چھاؤں کا جو کھیل ہے وہ بھی جاری رہے گا۔ البتہ شہر کا موسم جو ہے وہ تاحال حسین ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آسمان پر بادلوں کے ڈیرے ہیں اور باہر سردی کی جو شدت ہے وہ بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ اہل لاہور کے لیے اچھی خبر، شہر میں الیکٹرک بسیں چلانے کی تیاریاں مکمل۔ فلیٹ فیئر ماڈل میں مسافروں سے 30 روپے فی ٹرپ کرایہ لینے کی تجویز جبکہ سلیب فیئر ماڈل میں کم سے کم کرایہ 25 روپے ہوگا۔ شہر میں ماحول دوست الیکٹرک بسیں چلانے کی تیاریاں مکمل۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے 2 نجی کمپنیوں کو الیکٹرک بسیں چلانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ فلیٹ فیئر ماڈل میں مسافروں سے 30 روپے فی ٹرپ کرایہ لینے کی تجویز۔ سلیب فیئر ماڈل میں کم سے کم کرایہ 25 روپے اور زیادہ سے زیادہ 50 روپے ہوگا۔ الیکٹرک بسوں کا فلیٹ فیئر ماڈل کرایہ مقرر ہوا تو سالانہ اخراجات 26 کروڑ 73 لاکھ روپے آئیں گے۔ فلیٹ فیئر ماڈل کرائے ہوئے تو حکومت کو 8 کروڑ 98 لاکھ کی سبسڈی دینا ہوگی۔ سلیب فیئر ماڈل میں بسوں کے سالانہ آپریشنل اخراجات 26 کروڑ 30 لاکھ روپے ہوں گے۔ سلیب فیئر ماڈل کرایوں کی صورت میں 7 کروڑ 38 لاکھ کی سبسڈی دینا پڑے گی۔ کرایوں کے تعین کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ نے تجاویز پنجاب حکومت کو ارسال کر دی ہیں۔ حکومت جلد ہی ان کرایہ ماڈلز میں سے کسی ایک پر حتمی فیصلہ کرے گی۔ لوکل گورنمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے پنجاب حکومت کا نیا فارمولہ، پنجاب بھر میں لینڈ مافیا گرد شکنجہ کس لیا گیا۔ دیہات میں موجود ہاؤسنگ اسکیمیں بھی ٹیکس نیٹ کا حصہ ہوں گی۔ رقم لوکل گورنمنٹ کو ترقیاتی کاموں کے لیے منتقل کی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے لوکل گورنمنٹ کے مالیاتی وسائل بڑھانے کے لیے لینڈ مافیا کے گرد شکنجہ کس لیا۔ پنجاب اسمبلی میں پیش کیے گئے لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل 2024 کے مطابق دیہات میں بنی ہاؤسنگ اسکیمیں بھی ٹیکس نیٹ میں شامل ہوں گی۔ ٹیکس کے اطلاق کا دائرہ کار شہری علاقوں میں بھی وسیع کیا جائے گا۔ ٹیکس بغیر منقولہ جائیداد ایکٹ 1958 کے تحت لگایا جائے گا۔ پیسے لوکل گورنمنٹ کو منتقل کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق اس سے قبل لینڈ مافیا دیہات میں اسکیمیں بنا کر ٹیکس نیٹ سے بچ جاتا تھا۔ لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل 2024 پنجاب اسمبلی میں متعلقہ کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ کمیٹی 2 ماہ میں بل پر رپورٹ پیش کرے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ پاورنگ کمپنی بورڈ قانونی تقاضوں پر عمل پیرا نہ ہو سکا۔ کمپنی بورڈ غیر فعال ہونے سے آٹومیٹڈ سسٹم جیسی اصلاحات نہ ہو سکیں۔ سفارشی اور نان ٹیکنیکل اہلکار پرکشش سیٹوں پر براجمان ہیں۔ بورڈ اجلاس نہ ہونے سے درجنوں انکوائریاں فائلوں میں بند ہیں۔ پارکنگ کمپنی بورڈ غیر فعال، اصلاحات، انتظامی فیصلے اور انکوائریاں التوا کا شکار۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا پارکنگ کمپنی کے 6 ماہ سے چیئرمین مقرر ہیں۔ سی ٹی او لاہور سمیت 6 سرکاری ممبر بورڈ کا حصہ ہیں۔ پارکنگ کمپنی میں بورڈ کا تاحال ایک اجلاس بھی نہ بلایا جا سکا۔ چیئرمین کی تقرری، کمپنی بورڈ کے 4 پرائیویٹ ممبرز کا چناؤ زیر التوا۔ سیکرٹری کمپنی نے 8.5 کروڑ روپے کے غبن سے متعلق بھی بورڈ کو آگاہ نہ کیا۔ پرکشش 5 بڑی اسامیاں بھی خالی پڑی ہیں۔ سفارشی اور نان ٹیکنیکل اہلکار پرکشش سیٹوں پر براجمان۔ چیف فائنانشل آفیسر
कंपनी सेक्रेटरी की खाली असामी पर नॉन टेक्निकल एहलकार तैनात हैं। इंटरनल ऑडिटर, सीनियर मैनेजर ऑपरेशंस, जीएम ऑपरेशंस पार्किंग कंपनी की असामियां भी खाली हैं। कवायद ज़वाबत के मुताबिक असामियों के लिए इश्तिहार देना ज़रूरी है। पार्किंग कंपनी बोर्ड इजलास बुलाकर अफसरान को भर्ती करने का मजाज है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर लिव। PHA लाहौर में गैर कानूनी तरक्कियों का इंकशाफ। हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की इंक्वायरी कमेटी के हैरानकुन इंकशाफात। गैर कानूनी तरक्की पर असिस्टेंट डायरेक्टर को डी प्रमोट कर दिया गया। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी में कवानीन के मुतज़ाद तरक्की पर इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर हार्टिकल्चर हाफिज अबरार अहमद को 2 बार गैर कानूनी तरक्की दी गई। कवायद ज़वाबित के मुताबिक उन्हें सिर्फ गार्डन सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर तरक्की मिलनी चाहिए थी। कमेटी में चीफ इंजीनियर नॉर्थ फैसल शौकत और सेक्शन ऑफिसर खलील अहमद शामिल थे। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि हाफिज अबरार अहमद की गैर कानूनी तरक्की फौरी तौर पर मनसूख की जाए। DG PHA मोहम्मद ताहिर ने कमेटी की सिफारिशात तस्लीम कर दी हैं। 2019 में दी गई तरक्की को कल अदम करार देते हुए हाफिज अबरार अहमद को फौरी गार्डन सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर वापस भेजने के अहकाम जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि फैसला PHA में शफाफियत के लिए अहम कदम समझा जा रहा है। ताहम तरक्की के दौरान मिलने वाले माली फायदे वापस नहीं लिए जाएंगे। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। महंगाई का जन बेकाबू। शहर में बढ़ती महंगाई के बायस आवाम परेशान। मुर्गी या गोश्त की फ़ी किलो कीमत 590 रुपये, होलसेल जिंदा ब्रायलर 393 और परचून बाजार में जिंदा ब्रायलर 407 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 4 रुपये महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 256 रुपये पर बरकरार है। होलसेल मार्केट में फार्मी अंडों की पेटी 7560 रुपये में दस्तयाब है। महंगाई का जिन बेकाबू है। शहर में बढ़ती महंगाई के बायस आवाम परेशान। मुर्गिया गोश्त फ़ी किलो 590 रुपये बरकरार है। होलसेल में जिंदा ब्रायलर 393 और परचून बाजार में जिंदा ब्रायलर 407 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। अब्दुल कादिर से मज़ीद जानते हैं, बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नफनामे जारी किए गए हैं उसमें ब्रायलर की कीमतों में जो है वो कोई कमी पेशी नहीं की गई। 590 रुपये फ़ी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है। तहम मार्केट में साफी ब्रायलर जो है वो सरकारी नफनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमतें भी कम ना हो सकी हैं। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का आज 379, जबकि होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 393 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। परचून बाजारों के लिए जिंदा ब्रायलर 407 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। आज अंडों की कीमतों में 4 रुपए का इजाफा किया गया है और अंडों की कीमतों में मुसलसल इजाफे की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि सप्लाई जो है वो डिमांड के मुताबिक नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज 10 रुपए का इजाफा किया गया था, आज मजीद 4 रुपए बढ़ा दिए गए। 256 रुपए फ़ी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में सरकारी नरकनामों के बरक्स अंडे जो है वो महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। होलसेल मार्केटों में अंडों की पेटी जो है 7560 रुपए की मुकर्रर की गई है, लेकिन होलसेल मार्केट में भी अंडों की पेटी जो है 7560 के बरक्स जो है वो शहरियों को जायद कीमतों पर फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट में ब्रायलर और अंडे महंगे दामों फरोख्त हो रहे हैं। और शहरियों का कहना है कि सस्ती प्रोटीन जो है उसका हासिल अब मुश्किल हो चुका हुआ है। ब्रायलर और अंडों की कीमतों में अदम इस्तेहकाम का सिलसिला जारी है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि भावल नगर समेत सूबा भर के किसानों के मुतालिबात फौरी तस्लीम किए जाएं और गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर की जाए। हुकूमत ने मुतालिबात ना माने तो तमाम अजला जाम कर देंगे। चेयरिंग क्रॉस पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हक 2 बहावल नगर को धरने के शुरका से खिताब। हाफिज नईमुर रहमान खूब गर्जे बोले कि गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर न की तो किसान तहरीक शुरू होगी, सूबे के तमाम अजला जाम कर देंगे। जब 38 अजला से किसान आएंगे तो बहुत बड़ा धरना होगा। जितने मुतालिबात की फहरिस्त हुकूमत को दी उन्हें तस्लीम किया जाए, वरना मजीद लोग धरने में शामिल होंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि पिछले साल पंजाब के किसानों को धोखा दिया गया। पहले 3900 रुपए गंदम का रेट रखा, फिर मुकर गए। कहते हैं ज़राअत को तरक्की देना चाहते हैं, गंदम और गन्ने का रेट तय किया जाए, किसानों को किसान कर्ज कार्ड नहीं सहूलतें दी जाए। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि 12.5 एकड़ से कम अराजी के मालिक 90% किसानों को सहूलियात और बिजली की कीमतों में सब्सिडी दी जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि बानी PTI का आर्मी चीफ को खत लिखने का मतलब पंजाबी में तरले करने की आखिरी हद है। जिनको खत लिखा गया उनका कहना है कि खत को पढ़े बगैर ही वज़ीर आज़म को भेज दूंगा। अगर ख़त वसूल कुनिंदा नहीं पढ़ेंगे तो वज़ीर आज़म भी नहीं पढ़ेंगे।
स्पीकर पंजाब असम्बली की असम्बली के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत लिखने का मतलब पंजाबी में तरले करने की आखिरी हद है। बानी पीटीआई के खत का मुफस्सल जवाब वसूल कुनिंदा की जानिब से आ चुका है। अगर खत वसूल कुनिंदा नहीं पढ़ेंगे तो वजीर आजम भी नहीं पढ़ेंगे। खत का मामला है तो उसका तो बड़ा मुफस्सल और बड़ा बेहतरीन जवाब जो खत के वसूल कुनिंदा होने चाहिए थे उनकी तरफ से आ गया। उन्होंने कहा कि ये ख़त की अहमियत ये है कि मैं इसको पढ़ूंगा भी नहीं और इट इज़ जस्ट मतलब इस ख़त को उन्होंने कहा मैं वैसे ही प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा और गालबन जब वो नहीं पढ़ेंगे तो वो भी नहीं पढ़ेंगे। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मजीद कहा कि ये खत इन्हीं खतूत की एक कड़ी है। इनकी पहले भी कोशिश रही कि मुल्क डिफाल्ट का शिकार हो जाए। ये पाकिस्तान में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम और अदालतों में तकसीम चाहते थे। जो उनका एजेंडा था वो सिर्फ एक था और वो एजेंडा ये था कि डिफ़ॉल्ट कराना है पाकिस्तान को। वो इस एजेंडे पर आए हुए थे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करनी है, अदालतों में तकसीम करनी है, मुल्क के अंदर एक सियासी अफरा तफरी पैदा करनी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर इकनॉमिक स्टेबिलिटी तो एक बड़ा फार फेच्ड आइडिया रह जाता है ना। तो इसमें उनका वहाँ पर उनको नाकामी हुई। स्पीकर पंजाब असम्बली का मजीद कहना था कि आज पूरी दुनिया में ट्रेड टैरिफ पर बात हो रही है। भारतीय वज़ीर आज़म अमरीका में बैठे ट्रेड टैरिफ पर बात कर रहे हैं। बानी पीटीआई और उनके साथियों का एजेंडा क्या है? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान दौरान इजलास अरकान असम्बली की अदम दिलचस्पी के रवैये पर नाला। कहा वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास नहीं तो अरकान का असम्बली ना आना अफसोसनाक है। शादी ब्याह के लिए मुस्तहिक़ ख़ानदानों को 25,000 की इमदाद बाइस से शर्म है। स्पीकर पंजाब असम्बली की ज़ेर सदारत 1.5 घंटे की ताख़ीर से शुरू होने वाले इजलास में ज़कात व उशर के वक्फा सवालात के दौरान मुस्तहिक़ खानदानों के लिए शादी के मौके पर 25,000 रुपए की रकम जारी करने पर बरहम हो गए। कहा 25 साल से 25,000 की रकम शर्मनाक है। अरकान ने अपनी तनख्वाहें तो बढ़ा ली, कम अज कम रकम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के नुक्ता एतराज़ पर तहरीक इल्तवाकार के मामले पर वजाहत करते हुए कहा कि तहरीक इल्तवाकार इंतहाई अहम नोयत का मामला है। अरकान की अदम दिलचस्पी के बाद स्पीकर ने इजलास सोमवार दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने जिमखाना क्लब पर अशराफिया का कब्जा जुल्म करार दे दिया। अपोजिशन रुकन अहमद भट्टी ने जिमखाना क्लब को सरकारी तजावुजात पर कब्जा करार देकर बुलडोजर चलाने की तजवीज़ दे दी।